अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बड़ा चर्चा हुआ है पूरी दुनिया में कि इंडिया की बॉक्सर ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिनका नाम निखत ज़रीन है। उसी हवाले से एक वीडियो करने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ निखत ज़रीन हु विन गोल्ड मेडल। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। बहुत ज़बरदस्त निखत ज़रीन। This is Nikhat Zareen. She's 25, she's a boxer, and after years of fighting her doubters, fighting her community, fighting her own personal demons, after years of waiting for her turn to show what she can do, Nikhat is ready to take her fight into the boxing ring this year, finally as India's first choice flyweight boxer. People are appreciating ki the next big thing in boxing is Nikhat Zareen after the next Mary Kom. So why only next Mary Kom? Because I am making my own mark through my own hard work, you know. तो मैं अपने नाम से ही जानना चाहती हूँ मैं। एंड आई नो मैंने अपनी लाइफ में अब तक मैंने इतना कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है कि मैं अपने इतने प्राउडली आई कैन से कि आई एम निखत ज़रीन। माई अल्टीमेट ड्रीम इज़ टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एट ओलंपिक्स एंड विन मेडल फॉर माई कंट्री। तब मैं चौड़ से बोल सकती हूँ कि हाँ, आई एम निखत ज़रीन, आई एम ओलंपिक मेडलिस्ट। To live in the shadow of the best boxer to ever emerge from India was never going to be easy, and it was anything but for young Nikhat as she tried to make her mark in Indian boxing for the last decade since winning the Junior World Championship gold back in 2011. She's had to fight form and fitness, injuries and administration at times just to get a chance to prove that she's at least a worthy opponent. 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल होगी बोला था। वी वर सपोज टू एंटर इन द रिंग, वार्म अप सब हो गया, देन आके हमें बोला जाता है कि फ्लाईवेट में ट्रायल ही नहीं होगी। तो दैट थिंग हैज़ रियली हिट मी। मुझे बहुत फील हुआ था कि मैं इतनी खराब बॉक्सर भी नहीं हूँ कि मैं ट्रायल ही डिजर्व नहीं करती हूँ। तो मैं एक फेयर ट्रायल के लिए फिर मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सर से भी मैंने लेटर लिखा था, रिक्वेस्ट किया था। बट लास्ट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तो ट्रायल नहीं हो पाई, बट लास्ट में ओलंपिक क्वालिफाइज की ट्रायल हुई and there I lost to Mary Kom and I accept that defeat, and since then I have moved on. I never thought people will take it in this way, I will be recognized as अरे Nikhat Zareen, she is the one who played with Mary Kom, she challenged Mary Kom. It was just a casual me asking for a fair trial because I did not say directly send me to the Tokyo. No, I was just asking कि whoever wins, वो ही जाए। तो मेरे लिए मैं हारी हूँ करके मुझे कुछ दुख नहीं हुआ, बट आफ्टर द डिफीट पीपल स्टार्टेड कमिंग, ये वो है जिसने मैरी कॉम को चैलेंज किया था, बट क्या हुआ लास्ट में हार गई है वो, ऐसे ना। आई हैव सेड इन मेनी इंटरव्यूज कि आई लुक अप टू हर, शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ माई आइडल। तो मैं क्यों चाहूँगी कि उनको डाउन करके मैं अपने आप को ऊपर लेकर जाऊँ। The courage and conviction it took a young 23-year-old back in 2019 to fight for her dreams and take on the Boxing Federation, and also one of Indian sport's most loved superstars, came from a place rooted deep in Nikhat's struggle. Her journey from wanting to become a boxer in 2009 to now when she's one of India's leading flyweight boxers has not been an easy one, but it has been one that's been deeply supported by her father.
Born to a Muslim family in the Nizamabad district of Telangana, Nikhat had many people question her choice of the man's sport she had chosen, the shorts and vests she had to wear to fight. But Jameel Ahmad's defiance of society and stoic belief in his daughter taught Nikhat not only how to pull punches in the ring, but also off it. Me, being a Muslim girl, they did not like it taking up boxing just because, boxing में हमें shorts पहनना पड़ता है, sleeveless वाला top पहनना पड़ता है. And at the same time, boxing, known as male-dominated game. तो सबको ये था कि अगर मैं बॉक्सिंग में जाती हूँ तो अपने मैं फेस खराब कर लूँगी एंड मैं अपने हाथ पैर टुटवा लूँगी. So then who will marry me? More than my family, I think they were more concerned about my marriage. My father never allowed those people comments to get in my head because उन्होंने बाहर का जो भी है उन्होंने हैंडल किया है. He always told me one thing कि आप बॉक्सिंग पे फोकस करो, आप मेहनत करो और आप मेडल जीत के लाओगे तो यही लोग आएंगे आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए. यही लोग बोलेंगे कि जमील भाई निखत कब आएंगे घर, हमें मिलना था, ऐसे एंड जब मैंने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. तो तब लोगों ने सीरियसली लेना स्टार्ट किया कि ओके नाउ इट्स ए रियली बिग थिंग कि हमारे निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की वर्ल्ड लेवल पे खेल रही है और हमारा कम्युनिटी का नाम रोशन कर रही है. बट स्टिल दे आर फ्यू पीपल जो बहुत ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वाले होते हैं. स्टिल दे कमेंट ऑन माई पोस्ट. जब भी मैं कुछ कैजुअल वेस्टर्न कपड़े पहन के डाल देते, स्टिल दे कमेंट ऑन माई पोस्ट कि हिजाब में रहो, पर्दे में रहो, है ना. So, but still I ignore those comments and I live my life in my own way. And as if she didn't already have enough challenges in her young career, a career-threatening shoulder injury in 2017 saw Nikhat sidelined for almost a year and a half. The road to recovery was slow and lonely, but she found answers and support in her psychologist, who taught her to believe in the power of visualization. I used to tell her call करके, I used to cry also in front of her कि मैम मेरे घर से फ़ोन आया था, मेरे मतलब फैमिली वाले जो फैमिली फ्रेंड्स है वो लोग बोल रहे हैं कि अभी निखत का शोल्डर टूट गया है, तो हाउ विल शी एबल टू कम बैक बिकॉज बॉक्सिंग इज़ ऑल अबाउट शोल्डर एंड जब शोल्डर ही टूट गया है तो फिर कम बैक कैसे करेगी, वो जान नहीं रहेगी हाथों में, तो कैसे वो मारेगी बॉक्सर्स अपने अपोनेंट्स को और इंडिया के लिए मेडल कैसे जीतेगी. ये सब ना अभी बुला लो उसको घर वापस, पढ़ा लिखा के शादी करा लो. इतना मेडल तो अचीव कर लिया है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बन गई है, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर जीता है, तो इतने में तो स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिल जाएगा. उसके बाद जॉब मिलने के बाद शादी कर लो, बस करियर सेट है इसका. बट उनके लिए ये सेट है कि दैट्स एनफ फॉर देम, बट फॉर मी इट्स नॉट एनफ. मैंने बहुत बड़ा सोच रखा है. अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है मेरी उस टाइम. तो व्हाट यू थिंक यू बिकम कहते हैं ना, तो यू थिंक दैट यू आर बिकमिंग ओलंपिक चैम्पियन, यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पोडियम, नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, ये विजुअलाइज करो. एट द सेम टाइम आपको आपकी बॉडी भी वो फील कर पा रही है, द मूवमेंट, द बॉडी इज फीलिंग दैट मूवमेंट, एंड आप जब वो फील करोगे इट विल हैपन. तो मे बी गॉड हैज़ रिटर्न समथिंग इन माई डेस्टिनी कि जानबूझ के उन्होंने बोला कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा, इसको मैं मेंटली स्ट्रांग बनाने, इसको और मैच्योर्ड बनाने, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको इंजरी दे देता हूँ ताकि इंजरी के ये जो पीरियड ऑफ टाइम होगा 1 साल का, उसमें ये सीख जाएगी कि कैसे स्ट्रॉन्ग होना है. तो आई थिंक जो इंजरी मेरे लाइफ में करियर में हुई है, आई थिंक दैट प्लेड ए मेजर रोल टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. Since recovering from her injury in 2018, Nikhat has spent most months at the Sai Hostel at the IGI Stadium in New Delhi, training daily to get closer to her targets.
And 2022 finally is the year things have come together for her. She has already qualified in her preferred weight category for the World Boxing Championships and also the Asian Games this year, while already having beaten the Tokyo Olympics silver medalist to win a gold at the oldest boxing tournament in the world, the Stanza International, this February. चीज़ के लिए मेहनत की है एंड आई फॉट फॉर इट एंड आई वॉन एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे चलो कम से कम अभी एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरे बैग में तो है अभी स्टेप बाय स्टेप अभी फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आई विल फोकस ऑन दैट। पहले ये था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट होना है टीम में, देन आई विल डिसाइड कि अभी सेलेक्ट हो गई हो तो देन माई फोकस विल बी ऑन विनिंग मेडल इन दैट कॉम्पिटिशन। देन उसके बाद कॉमनवेल्थ है, अभी भी मैं कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाइड नहीं हुई, फॉर दैट आई नीड टू गिव ट्रायल में सिलेक्शन लेना है, देन सेलेक्ट होने के देन आई विल थिंक अबाउट विनिंग मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स फिर एशियन गेम्स में सिलेक्शन हो गया है तो नाउ आफ्टर दैट माई फोकस विल बी ऑन एशियन गेम्स। तो स्टेप बाय स्टेप आई वॉन्ट टू फोकस ऑन ईच कॉम्पिटिशन। And now as she embarks on the journey she has waited on for years, with the Olympic medal forever her big target, there's a little other wish that Nikhat has as well. Another dream that will be fulfilled with a medal around her neck. I have become his huge fan. So it's my dream one day, कि सलमान खान से मिलना है. And I know it will only fulfill when once I win Olympic medal. तो उसी से सारे मेरे ड्रीम्स अटैच है. तो जब जिस दिन मैं ओलंपिक मेडल जीतूंगी सबसे पहले मैं मुंबई जाऊंगी और सलमान खान से मिलूंगी. जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो निखत ज़रीन की, और उन्होंने अपने आप को मनवाया. और एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो इतनी अनथक मेहनत करता है कि वो चाहता है कि भाई मैं जो है अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक मेडल जो है लेकर आऊँ, गोल्ड मेडल. तो इनका भी यही फोकस था कि भाई मैं जो है इतनी मेहनत करूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो है ना एक गोल्ड मेडल लाऊं, और जिसमें कि ये कामयाब भी हो गई. तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा तो इम्तहान ये होता है कि वो ऐसे गेम के लिए जहाँ पर वो सिलेक्शन के लिए जो है ना जाती हैं कि भाई मैं किसी तरीके से अपनी इस जो इवेंट हो रहा है उसमें मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, और ट्रायल्स दिए जाते हैं. बहुत सारी अनथक मेहनत के बाद जो है ना उनका नाम आता है. फिर अपने मुल्क के जो लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनमें कंपटीशन होता है, उसमें से विन होकर जो है ना फिर एक बंदा जो है निकल कर आता है और फिर अपनी कंट्री के लिए जो है वो लड़ता है. तो इसी तरह निखत ज़रीन के साथ भी ये इस तरह की वाक़यात थे कि भाई जिस तरह ख़वातीन के साथ होते हैं कि भाई घर से जो है सपोर्ट का होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इनको सपोर्ट मिली अपने पेरेंट्स से. और इनका ख्वाब था कि भाई मैं किसी तरीके से भी सिलेक्ट हो जाऊं. तो ये सिलेक्ट हुई, और सिलेक्शन कमेटी का जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो बोर्ड बैठता है, तो उनका भी एक बड़ा अहम रोल होता है कि वो देखते हैं कि कौन से स्पोर्ट्समैन में कितना जो है पोटेंशियल है. तो उस हवाले से जो ना ऐसे स्पोर्ट्समैन को जो वो लेते हैं. अब इनमें उन्होंने देखा कि भाई निखत ज़रीन जो है एक बाहिम्मत और बसलाहियत जो है ना खातून है जो कि अपनी कंट्री के लिए जो है गोल्ड मेडल ला सकती हैं. तो उन्होंने इनको जो सिलेक्ट किया और इन्होंने अंत तक मेहनत की. इनका ड्रीम भी था कि भाई मैं अपने नाम के तवस्सुस से जो है ना जानी पहचानी जाऊँ. तो इन्होंने अपने उसमें इंटरव्यू में बताया भी कि भाई मैं जो है ना चाहती हूँ कि भाई मेरे नाम से जो है लोग मुझे जाने, लेकिन उस नाम से जानने के लिए लाजमी इतनी अंत तक मेहनत इन्होंने की और एक अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया. और इनके ड्रीम और बहुत सारे हैं कि भाई ये चाहती हैं कि भाई मैं, जब इन्होंने पहले इंटरव्यू दे दिया था कि भाई मैं जब ये कोई मेडल लेके आऊँगी तो सबसे पहला मेरा ये होगा कि मैं मुंबई जाऊँगी तो सलमान खान से मिलूँगी. तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी ख़वातीन जो है सलमान खान से जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है. और इनका भी एक ड्रीम था कि भाई मैं सलमान खान से मिलूं. जब ये सलमान खान से मिलेंगी तो वो एक वीडियो हम दोबारा बनाएंगे. और दोस्तों, आपने देखा कि कितनी बाहिम्मत और बासलाहियत ये खातून है कि एक लड़की होने के नाते बड़ी चीज़ों को जो है फेस किया जाता है. अपनी जहाँ पर रह रहे होते हैं वहाँ पर जो काफ़ी सारे जो ताने फैमिली की तरफ से भी मिल रहे होते हैं कि भाई आप क्या कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं, ऐसे क्यों कर रही हैं. लेकिन पेरेंट्स की जहाँ पर सपोर्ट हो और कोचेस की जो सपोर्ट मिलती है तो लड़की के अंदर जो है और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है. इसी तरह आपने देखा कि इंडिया में जो है सानिया मिर्ज़ा और टेनिस की जो स्पोर्ट्स हैं बहुत ही उन्होंने भी पूरी दुनिया में जो है इंडिया का जो है नाम जो है रोशन किया. और टेनिस में एक उनका अलग एक मुकाम है. और हाल ही में मैंने एक वीडियो की थी जिसमें कि मुमताज़ ने जो है अपनी टीम को जो है जितवाया था
हॉकी में, और उन्होंने भी बड़ी अंत तक मेहनत की और अपने उनके फादर ने जो उनको सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपना जो एक नाम रोशन किया इंडिया के लिए। तो इसी तरह निखत ज़रीन भी जो है उन्होंने भी एक इतना बड़ा टारगेट था जो उन्होंने अचीव किया, और मज़ीद जो है वो चाहती हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ, अपने मुल्क का जो है नाम रोशन करूँ। तो काफ़ी सारे इवेंट्स अभी मज़ीद बाकी हैं कि जिसमें कि वो जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त और बाहिम्मत और बासलाहियत खातून, और जिन्होंने इंडिया के लिए जो है एक गोल्ड मेडल जीता और अपना नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। जब स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है किसी भी कंट्री के लिए तो फ़ख्र से सर जो है बुलंद हो जाता है। तो जहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया नंबर 1, तो लाजिमात है कि जो है इन्होंने विन किया, गोल्ड मेडल लिया। बड़ी खुशी की बात है, हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई निखत ज़रीन जो है उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, क्योंकि आज मैं सिमल नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह का आप हमारा रिएक्शन देखते रहें।